welcome back everyone to Career Shades. Today we have J.S. Sodhi with us. He is a retired Indian Army officer. He has also done engineering, MBA, LLB, and currently he is working as an editor. Let's talk about the exams you have to clear to become an Indian Army officer. And is there much competition there? And कैसे तैयारी करनी होती है एग्जाम्स के लिए? The Indian Armed Forces comprise the Indian Army, Indian Navy, and the Air Force. There are various ways one can get commissioned as an officer in one of these three services. The first and foremost is the National Defense Academy, which is situated in Khadakwasa near Pune. And for that, nowadays, you have to be a 12th pass to appear and finally get selected. And the examination of NDA has two papers. One is mathematics and one is the general paper, which has portion of science, general knowledge, English, etc. There are other modes of entry also, like the Combined Defense Services examination, then the Officers Training Academy, the short service examination, then the technical entry scheme. So there are a lot of opportunities available today for a young candidate or a young student who's interested in making a career in the Indian Armed Forces. And there are also a lot of books available nowadays because of internet coming. Everything is there at your fingertip. Unlike in my time, there was no internet, there was no cable TV, and one had to rely either on the newspapers or these pamphlets which I just told you some time back. But now with this vast expanse of knowledge available at the fingertips, knowledge is not a problem anymore. There's everything that one wants to know about how to apply for these examinations to enter the Indian Armed Forces. All the minute details are there on the net. So my advice to the young candidates who want to make a career in the Armed Forces is that at a right time in life, decide what you want to do, be it the Armed Forces or be it any other career, generally speaking, and then work backwards toward it. You have to have a timeline for everything. That at this particular age and year, I have to do this, I have to do this. Once you structure your career ambition, you will find you are always successful in that. So जब अपन स्टार्ट में ही जब क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, तो आप कौन से पोस्ट से स्टार्ट करते हैं जब आपको वहां पर लेकर के जाते हैं? पहला रैंक है आजकल लेफ्टिनेंट का रैंक है। मेरे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक था, लेकिन कुछ साल पहले सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक निकाल दिया गया। और अब जो भी ऑफिसर इंडियन आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर अपना करियर शुरू करता है, उसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट रैंक से होती है। उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद जनरल, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। और अभी 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई अपॉइंटमेंट भी क्रिएट की, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं प्रोग्रेस के, वो बहुत है, राइट फ्रॉम अ लेफ्टिनेंट टू अ जनरल। और यही इक्विवेलेंसी ऑफ रैंक्स होती है नेवी में और एयरफोर्स में। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें आना चाहता है, तो उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स जो कि मैंडेटरी है अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं? तो सबसे बड़ी स्किल जो कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आर्म फोर्सेस में, उसमें स्किल होनी चाहिए कि उसको इस बात की जानकारी और एहसास होना चाहिए कि आर्म फोर्सेस में लाइफ सिंपल नहीं है। हम जो मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, गोल्फ हो रहा है, स्विमिंग हो रही है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, वो आर्मी का एक छोटा पार्ट है। आर्मी की कई पोस्टिंग्स बहुत टफ होती हैं श्रुति जी, और किसी भी कैंडिडेट के अंदर वो जोश और जज्बा होना चाहिए ऐसी कठिन नौकरी करने का और देश की सेवा करने का। अगर आदमी सोचे कि 2 मिनट के लिए मेरा इंटरनेट चला गया तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसे याद रखना चाहिए कि आर्मी में आज भी ऐसी पोस्ट है जहां पे कोई इंटरनेट नहीं है, जहां पे बिजली नहीं है, क्योंकि वो इतने दूर दराज के इलाकों में है और पूरी सेल्फ सस्टेन्ड है। वहां पे जनरेटर्स हैं, लेकिन वहां पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक पर्सनल एग्जांपल इसके बारे में, जो कि एक मैसेज जाएगा सारे कैंडिडेट्स को जो आपका चैनल देख रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस चैनल है इंडिया में और अब्रॉड भी, और काफी लोग आपका चैनल देखते हैं, कि आर्मी की लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन कठिन है, और जो कठिन लाइफ के लिए तैयार है उसको ही आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, एक मेरे जान पहचान के ऑफिसर हैं जो कि एक पोस्ट में पोस्टेड थे। वो पोस्ट
पाकिस्तानी पोस्ट से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे थी। यानी कि जिसे हम सुनते हैं आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट, वहां पे भारत की सेना के और पाकिस्तानी सेना के जवान अफसर एक दूसरे के आंखों में देख सकते थे, इतने पास वो पोस्ट थी। और ये ऑफिसर वहां पोस्टेड थे और उनको बेटा हुआ। जब उनको पहली बात तो खबर ही 4 दिन के बाद मिली। जब 4 दिन बाद खबर मिली तो उनका मन किया अपने बच्चे से मिलने का, उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। और जब वो आ रहे थे, उनका जो नियरेस्ट रोड हेड जहां से गाड़ियां लास्ट पॉइंट तक चलती हैं, वो रोड हेड था नौगाम, एक जगह है जम्मू कश्मीर, नौगाम। नौगाम तक आने के लिए कोई जो छोटे ट्रैक्स होते हैं जिसमें भारतीय सेना की छोटी गाड़ियां जैसे जीप और जिप्सी चलती हैं, वो पूरी तरह से बंद थी क्योंकि वहां पे काफी बर्फ हो चुकी थी। तो वो 3 दिन और 3 रातें वो बर्फ पे चलते रहे, क्योंकि जब आप बर्फ पे चलते हैं श्रुति जी, आप सिर्फ रात के समय पे ही चल सकते हैं, क्योंकि दिन के समय बर्फ पिघल सकती है और एवलांसा आ सकता है। तो 3 रात ये चलते थे, 3 दिन ये वेरियस डिफरेंट आर्मी कैंप्स में रेस्ट करते थे। और फिर ये ऑफिसर पहुंचे नौगाम। नौगाम से जो कॉन्वॉय ने आर्मी के लोगों को श्रीनगर एयरपोर्ट लेके जाना था, वो 5 दिन तक चला नहीं, क्योंकि वहां पे काफी पथराव हो रहा था। और जब वो फिर 5 दिन के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे, फिर फ्लाइट लेके वो घर पहुंचे। यानी कि कहने का मतलब है, उनका बच्चा होने के बाद वो तकरीबन 13-14 दिन के बाद वहां पहुंचे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आर्मी की जो लाइफ है वो टफ है, और जिस भी कैंडिडेट में वो जज्बा है इस एडवेंचरस लाइफ का, इस टफ लाइफ का, और देश की सेवा करने का जुनून है जिसमें, उसको इस एग्जाम की के लिए पर्चा भरना चाहिए।